السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو میرا مخاطب خاص کر کے علماء کرام ہیں، میں ان علماء کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ میں ایک چیز بتا دوں کہ ہر آدمی جو ہے روزگار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور سب کو روزگار چاہیے، اس لیے کہ معیشت جس کی بہتر ہو وہی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے۔ اور سب سے جو ہے معیشت کے اعتبار سے دیکھا جائے حالت جو خستہ ہے وہ علماء کرام کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی اسکل، کوئی ہنر نہیں ہے سوائے علم دین کے۔ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد وہ مدرسے کی طرف رخ کرتے ہیں، مکتب کی طرف، اور نہیں تو مسجد کی طرف۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اپنے ملک ہندوستان میں ہر سال جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہوتے ہیں، کسی مدرسے سے 500، جیسے مبارک پور سے 500 600، امجدیہ ہے، ثقافت السنیہ ہے، جامعۃ الرضا ہے، رونائی شریف ہے، جامع اشرف ہے، بہت سارے ادارے ہیں کہ امجدیہ گھوسی ہے، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں سے 200 150 300۔ اب بتائیے کہ سارے فارغین کہاں جائیں؟ تو بہتر ہے کہ روزگار کے لیے ہم کچھ اپنے اندر اسکل پیدا کریں۔ دیکھیے کہ علم دین سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا۔ اب ہم مزید جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے پلس پوائنٹ، اگر ہم کچھ ہنر سیکھ لیں تو خدمت دین بھی کریں گے اور اپنی معیشت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ اور مسجد ہی تک ہم محدود رہیں، بلکہ عالم فاضل مفتی کی ہر فیلڈ میں، یعنی کہ دنیا کے تمام شعبۂ حیات، کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کمپنی میں جائیں گے تو کمپنی میں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ورکرس ہیں، سب کو مسئلے مسائل درپیش آتے رہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہاں بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے عالم کی۔ تو اگر ایک عالم پلس ڈاکٹر ہو، ایک عالم پلس انجینئر ہو، ایک عالم پلس کیا کہتے ہیں سرجن ہو، ایک عالم پلس ڈرافٹس مین ہو، ایک عالم پلس یہ جو ہے ٹیکنیشین ہو، تو دیکھا جائے کہ عالم کے ساتھ ساتھ ایک کوئی اور ٹیگ بھی آپ کے ساتھ لگ جائے تو آپ کی دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخرت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو آپ کی تو آخرت کے آپ کو کوشش ہے ہی ہے، آپ آخرت کے لیے کما حق خدمت کر ہی رہے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک کوشش ہو رہی ہے پبلک بھی جڑ رہے ہیں، اس لیے کہ علماء کرام ہی یہ معمار قوم و ملت۔ یہی اگر علماء نہ ہوتے تو جو لوگ آج تھوڑا بہت بھی دین کی طرف آ رہے ہیں یا دین کی سمجھ ہے، یہ سب اور سب کچھ جو ہے مدارس اسلامیہ اور علماء کا دین ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے یا علماء کرام نہ ہوتے تو لوگ آج جو ہے کافی حد تک جو ہے اسلام سے دور جا چکے ہوتے۔ ابھی بھی لوگ دور ہی ہیں لوگ، لیکن جو کچھ بھی تھوڑا بہت ان کے اندر ہے تو اس کے اصل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں وہ علماء کرام ہیں اور مدارس اسلامیہ ہیں، کہ انہی کی بدولت جو کچھ پبلک میں کچھ سدھ بدھ ہے، تو ان کی ضرورت بہت ہے، بہت اشد ضرورت ہے علماء کی۔ تو یہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے لیکن سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ علماء تو ہے ہی ہیں، اب مان رہے ہیں کہ ایک عالم کی ضرورت ہے اور وہاں 10 موجود ہیں، تو اب بتائیے کہ 9 کی کیا ضرورت، ایک ہی عالم کی ضرورت ہے، وہاں 10 پڑے ہوئے ہیں۔
एक मोहल्ले में एक इमाम, एक नायब इमाम, एक मुअज्जिन, 3, और वहाँ पे 15 लोग हैं, तो बताइए कि बकिया लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी शहर और सिटी में ले लीजिए। तो मसला ये है कि हम अपने अंदर कुछ जो है ना जिद्दत लाएं। जिद्दत लाना कोई गुनाह नहीं है। और देखिए, हम सब की जो तख्लीक है, हम सब जानते हैं कि तख्लीक का मकसद उला क्या है? कि अल्लाह की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इस तख्लीक के मकसद को सब लोग समझ रहे हैं, और इसी मकसद को समझते हुए कि हम अल्लाह की इबादत भी करें और अपनी मईशत को बेहतर से बेहतर भी बनाएं, तो इसमें कोई टकराव नहीं है और कोई ये नहीं है। और दुनिया के हर गोशे में उलमा की जरूरत है। तो आप ये ना सोचें कि मैं इतना दिन पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है मैं गल्फ चला जाऊं या कहीं और कोई तिजारत, कपड़े की दुकान कर लूं अपने मुल्क ही में, या चप्पल की दुकान कर लूं, या लकड़ी का कारोबार कर लूं, या फर्नीचर का, या और भी कोई भी चीज। तो यार मेरा पढ़ना बेकार है? नहीं, पढ़ना बेकार आपका नहीं है। आप इल्म जो है ये एक रोशनी है, एक नूर है। आपके पास इल्म है, आपने 14-15 साल जो भी मदरसे में लगाया, अच्छी बात है। अगर साथ में आप तिजारत कर रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है? तिजारत भी कीजिए, और उस तिजारत में जो है अपने इल्म को अप्लाई कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिए। आपके ताल्लुकात जो है बहुत सारे लोगों से, कहाँ कहाँ के लोगों से, कस्टमर से बनेंगे, तो उनसे भी आप दीन का काम ले सकते हैं, दीन की तबलीग व इशाअत कर सकते हैं, उनके साथ मसला मसाइल बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे तभी दीन का काम होगा। इस पे बस फोकस करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है सऊदी में जो है, मैं अभी सऊदी में हूँ, यहाँ पे बहुत सारा काम, बहुत सारा, मतलब कि उलमा के लिए जो है ना कि बहुत सारे रोजगार के मौके हैं। बस ये है कि अपने आप को सेट कर लिया जाए कि हमको कुछ करना है। जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और हमसे हमारे दोस्त अहबाब जानने वाले जिनको मालूम है कि मैं सऊदी में हूँ, तो पूछते हैं कि नौशाद भाई हमको भी बुलाइए, हम किस में आए, कैसे आए, क्या कर रहे हैं। तो अब बताइए कि हम क्या बताएं। आप अपना एनालिसिस खुद करें, खुद का मुहासबा करें, खुद सोचें कि हम, हमारा जो रुचि है, हमारा जो रुझान है, हम किस चीज़ को प्रीफर करते हैं, हम किसको तरजीह देते हैं। वो अपने तौर पे आप फैसला कीजिए कि हमको ये अच्छा लगता है। तो उसमें आप क्या कहते हैं कि साल भर 2 साल का वो डिप्लोमा कीजिए, या उसको फिर सीखिए, सीखने के बाद आ जाइए। मैं जो हूँ अ, हर तरह के फील्ड से कुछ काम निकाल करके आपके पास लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसको बयान कर दूँ। इसमें से जो भी आप चाहें चूज कर सकते हैं, और चूज करने के बाद उस पे साल से 2 साल फोकस करें। उसके बाद आप आ सकते हैं सऊदीया में, कतर, दुबई, बहरैन, ओमान, मस्कत, कहीं भी गल्फ की किसी भी क्या बोलते हैं अब शहर में, किसी भी क्या बोलते हैं मुल्क में जा सकते हैं। ये जो खाड़ी देश हैं, इनमें से किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये है कि आप, बस ये है कि लाज शर्म निकाल दें। ये अब लोग सोचते हैं कि आलिम होकर के हम काम करेंगे। भाई, काम करना कोई ऐब नहीं है। आप सहाबा के दौर को देखें, ताबीन, साहबे कराम तिजारत नहीं किए हैं, ठीक है ना? ये खुद इमाम आजम अबू हनीफा को देख लीजिए, जो जो भी अइम्मा मुजतहिदीन है, या साहबे किराम है, उस्मान गनी हो या हजरत अली हो, जिनको भी आप देख लीजिए, सब लोग तिजारत किया करते थे। बनु खिलाफत बनु अब्बासिया में देखिए, नजर उठा करके। तो कोई ये जो है ना ऐब का काम नहीं है। आप नमाज भी पढ़ाए, काम भी करें, काम करना कोई ऐब नहीं है, समझ रहे ना? कोई भी काम करना, कंप्यूटर चलाना, या कहा करते हैं कि गाड़ी अपनी चलाना, या लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, ये कोई ऐब की बात नहीं है। ये सब एक हुनर है, और हुनर कोई ऐब नहीं होता। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना? हम खुद इल्म हासिल करके अपने रोजगार की तलाश में हैं, और रोजगार कर रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमको क्या शर्म है? मैंने कुछ ये किया है, आपको मैं बता दूं, मैं लिख के लाया हूँ कि कुछ ध्यान में आए कुछ ना आए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ये, जैसे कि अपने यहाँ एयरटेल, एयरसेल और
BSNL वगैरह, इसमें यहाँ पे सऊदी टेलीकॉम है, और इसके अलावा भी मोबाइली है, जैन है, 3 कंपनी है यहाँ की, मोबाइली, जैन और क्या कहते हैं STC। इसमें आप जो है टेलीकॉम टेक्नीशियन, इसमें ज्यादातर लोग जो आपको हैदराबाद के मिलेगा वो पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, टेलीकॉम इंजीनियर होते हैं। तो अपने यूपी बिहार में तो बस इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के अलावा कोई आता ही नहीं, बस यही दो, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। अब पेंटर, अब मेसन, ठीक है ना, और ये एक और आता है कारपेंटर, नज्जार, यही सब दो चार पांच गो ये है प्रोफेशन है, इसी में लोग अपने यहाँ से आते हैं, और कुछ तो बेहतर लेके आते नहीं हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब, मतलब ये सब भी बढ़िया काम है। यहाँ पे एक जहन में ये बात रखें कि गल्फ में कोई भी काम वो हेच नहीं देखा जाता है। वो देखिए, फन्नी कहते हैं, फन्नी का मतलब होता है मुअल्लिम, मुअल्लिम भी कहते हैं, फन्नी कहरबा, फन्नी सिबाका, फन्नी तकयीफ। ये मुकय्यफ को क्या कहते हैं, जो 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 ये होता है एयर कंडीशन टेक्नीशियन होता है, उसको फन्नी तकीफ कहते हैं। यानी कि ये तकीफ का, एयर कंडीशनर का क्या कहते हैं, ये मुअल्लिम है। वैसे ही कहरबाई को, ये इलेक्ट्रिकल जो है डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रीशियन होता है, उसको फन्नी कहरबा कहते हैं। वैसे ही सिबाका का, यानी कि प्लम्बर का जो है कोई मुअल्लिम है, तो उसको फन्नी सिबाका कहते हैं। तो वहाँ कहते कि नहीं, बल्कि उनके साथ रिस्पेक्ट भी जो है ना एक टीचर की तरह करते हैं, एक मतलब कि एक जानकार, एक पढ़े लिखे की तरह, उसको लेबर या टेक्नीशियन की तरह नहीं, बल्कि समझते हैं कि बहुत जानकार पढ़ा लिखा इंसान है, वैसे उसके साथ बिहेव करते हैं। अपने यहाँ तो नहीं सिस्टम है, अपने यहाँ तो लोग कहते हैं थोड़ा सा बिहेव में कमी कर देते हैं। बस इंजीनियर ही की इज्जत है, डॉक्टर और मास्टर की इज्जत है। बकिया जो लोग हैं, रिक्शा चालक है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पेंटर है, नज्जा, ये कारपेंटर, बढ़ाई है, ये सब काम को अपने यहाँ लोग हेच समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, किसी भी काम को यहाँ पे हेच नहीं समझते हैं। तो इसमें जो है फाइबर टेक्नीशियन है, JSM टेक्नीशियन है, और BTS टेक्नीशियन है, ये जो आप टेलीकॉम में। ऐसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख सकते हैं। इसमें आकर के आप मुराकिब, मुशरिफ, सुपरवाइजर, फोरमैन बन सकते हैं, लीड मैन बन सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है आप प्लम्बर, ही है प्लम्बर का काम, तो प्लम्बर में फोरमैन भी है, सुपरवाइजर है, मुराकिब है। वैसे ही एलिवेटर ऑपरेटर, यानी कि जो मसाद, यानी कि क्या कहते हैं अपने यहाँ लिफ्ट, ये जो लिफ्ट टेक्नीशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, लिफ्ट बन गया उसको मतलब बनाने के लिए, और एक ऑपरेट वाला होता है, उसको एलिवेटर ऑपरेटर कहते हैं। तो वो भी काम सीख सकते हैं, उसमें भी अच्छी सैलरी है। उसके अलावा फायर फाइटिंग, जैसे कि ये क्या कहते हैं कि आग उग लगती है तो बुझाने के लिए जो है उसका सिस्टम होता है, उसको फायर टेक्नीशियन, उसमें भी अच्छी सैलरी है फायर फाइटिंग की, तो उसकी तासीस का भी काम है, और उसके क्या बोलता है मेंटेनेंस भी है। तो ये सब जो है यानी कि नया काम भी होता है, और मेंटेनेंस में भी तो फायर फाइटिंग का भी आप नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, बैठने वाला ऑफिशियल जॉब जो है ये केशियर का है, केशियर यानी मुहासिब। उसके अलावा डेटा एंट्री का अगर नॉलेज है कंप्यूटर में, या MS ऑफिस आप किए हुए हैं, तो उससे आप किसी भी कंपनी में आप ये जो है ऑफिशियल जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री काम कर सकते हैं, मुहासिब लिखा पढ़ी का काम कर सकते हैं। आप स्टोर में क्या कहते हैं, स्टोर कीपर का काम कर सकते हैं। ये सब है। उसके अलावा देखा जाए तो ये एक क्रेन ऑपरेटर है, JCB ऑपरेटर है, इसकी भी इज्जत है माशाल्लाह। यहाँ पे अपने यहाँ तो कोई नहीं इज्जत, लेकिन यहाँ पे बहुत इज्जत है, ठीक है ना। तो ये क्रेन ऑपरेटर हो गया, JCB ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में भी है। तो होटल मैनेजमेंट में बहुत कुछ है, उसमें आप जो है ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, इंटरप्रेटर का काम कर सकते हैं, यानी कि मुतरजिम का काम कर सकते हैं। आप जो है उसमें होटल में रह करके, या होटल की देख रेख करने के लिए, यानी कि हारिस का काम है, उसके क्या बोलता है आप चौकीदारी, गार्ड का काम कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें इंटरप्रेटर, यानी मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आएंगे, तो उनको, आपके पास अरबी ज़बान है, इंग्लिश की थोड़ी सी आप स्किल ले लें, तो इंग्लिश में समझ करके उनकी अरबी में या हिंदी में, उर्दू में, बहुत सारे कंट्री से लोग आते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है सेल्समैन, सेल्समैन जो है
ये सुपर मार्केट में जो है सेल्समैन होता है, तो सेल्समैन बड़े बड़े जो मार्केट है उसमें लोग रखते हैं, तो सेल्समैन में भी कई जबानों की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश हो, अरबी हो, फर्सियन हो, इसलिए कि ईरान से भी लोग आते हैं, अरब कंट्री से, उर्दू कंट्री से भी लोग आते हैं। तो 2-3 लैंग्वेज, वो 2 से 6 महीना आप रहेंगे तो सारी जबानें आप सीख जाएंगे। फार्मासिस्ट यानी कि दवाई बेचने वाला, तो ये फार्मेसी जो यहाँ पे होता है, दवाखाना जो है फार्मेसी में, तो आप फार्मासिस्ट बनकर भी उसके लिए अपने यहाँ कोर्स है फार्मासिस्ट का, वो कोर्स करके 2-3 साल का आप यहाँ आ सकते हैं मेडिकल लाइन में। या पैथोलॉजी का है, ये पेशाब जो है, और स्टूल पखाना, ये इसकी जो जांच है, इस जांच को भी आप करके हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ये ड्राइविंग स्किल, ये जो ड्राइविंग स्किल है, ये इसकी बहुत अहमियत है। ये ड्राइविंग स्किल जो है, आपके पास अगर ड्राइविंग की नॉलेज है तो आप अपनी गाड़ी लेकर के, या आपके पास अपनी गाड़ी ना भी हो तो कंपनी की गाड़ी लेकर के आप जो है बड़ी बड़ी, जैसे शिरका फनार है, और भी बड़ी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, ये शिरका अलमराई है, तो वो जो मतलब प्रोडक्ट्स जो तैयार करती हैं, तो आप जो है ना छोटे छोटे बकाला में, शॉप में जा करके उनसे ऑर्डर ले सकते हैं, और ऑर्डर ले करके कंपनी से माल सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। और शिरकतुल मियाह यानी कि पानी, गाड़ी अगर आपको चलाने आती है तो आप शिरकतुल मियाह में जाकर, यानी कि जो पानी, जो जैसे कि अपने यहाँ जो बिस्लरी वगैरह के ये जो पानी है बोतल जो तैयार होता है, यहाँ पर भी कई सारी कंपनियां हैं, तो उसमें से जो है ना आप पानी लेकर के दुकान दुकान पे ये डिलीवरी करें, तो उसमें भी ठीक ठाक पैसा है और इज्जत भी है। उसके अलावा देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट भी, इसमें आप सेफ्टी ऑफिसर, ये जो है 6 महीना साल भर का कोर्स है, इसको करके आप जो है इसमें भी इज्जत की नौकरी है, इसमें भी आ सकते हैं। तो ये सारे मैं मुख्तसर जो मेरे ज़हन में, मैं उसको थोड़ा सा नोट कर लिया कि ताकि आपके सामने रख दूं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है अपने आप को पहले सेटल करें कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं रहना, और जिस पे आपका माइंड चला जाए, यानी कि जिसका जो, जिसको आप प्रीफर करते हो, जिसको आप तरजीह देते हो, जिसका आप, आपकी तरफ जिसका शौक यानी कि झुकाव ज्यादा हो, लगाव हो आपका, उसी पे फोकस करें, और उस काम को सीख करके आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है ना? नहीं तो कोई मसला नहीं, हमारे पास जो था मैं कह दिया, बता दिया, हमारा काम है सिर्फ बता देना। ठीक है ना? करना ना करना ये आपके ऊपर है। मैं यही कोशिश करूंगा कि हमसे जो भी मदद हो सके मैं दूं, अगर हमसे कोई मांगता है तो। हमसे चंद लोगों ने पूछा क्या करते हैं, क्या करना करना चाहिए हमें, तो हम अपने ज़हन के तौर पे बता दिए। एक चीज ये कि मस्जिद और मदरसा, लोग चाहते हैं कि गल्फ में भी हम जाएं तो कोई किसी मस्जिद में जाएं या किसी मदरसे में जाएं, तो ये मतलब ज़हन और दिमाग से बात निकाल दें कि यहाँ पे खारजी के लिए कोई जगह है मस्जिद में या मदरसा में। ठीक है ना? मस्जिद में आपको जो खाल खाल बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया के मिल जाते हैं, तो वो जो है साइड से रखे जाते हैं, और वो मुअज्जिन के लिए, और उसको साफ सफाई करने के लिए। ठीक है ना? साफ मस्जिद की साफ सफाई, और अजान देना है, और क्या कहते हैं मस्जिद में पानी वगैरह रख देना है। ठीक है ना? ये इसी काम के लिए रखते हैं। तो वो जो डायरेक्ट नहीं रखे, वो शिरका के ताल्लुक से, या जो है क्या कहते हैं कि वो किसी खास के आदमी होते हैं, किसी खास सऊदी को वो मस्जिद में दे दिया कि आप तुम मस्जिद में ये काम करो। ठीक है ना? उसके लिए कोई स्पेशल जॉब नहीं है, न मस्जिद के लिए न मदरसा के लिए। मदरसा में जो सऊदी जिनसिया है, जो सऊदी नेशनलिटी होल्डर है, जो यहाँ के नेशनलिटी लिए हुए हैं, यानी कि जो यहाँ के हैं, ठीक है ना, सऊदी जिनसिया, जो वही लोग जॉब करते हैं सरकारी मदारिस में। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, जामिया है, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, तो वो सब के सब जो है ना पीएचडी होल्डर है, वो सब के सब डॉक्टर हैं, तो वो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ये इंटरमीडिएट या जो कॉलेज है, जो उसके नीचे ब्रांचेस जो भी हैं, इसमें सब सऊदी के लोग ही पढ़ाते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।